कैलोरी डेफिसिट में सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि दे वुड गो टू एक्सट्रीम। कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब नहीं है कि खाना खाना बंद करना है, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू। वेट लॉस इज नॉट समथिंग यू शुड एनीवे टारगेट। तो आपका वेट तो बहुत सारी चीज़ों से कम हो सकता है। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं, सॉल्ट छोड़ देते हैं, एंड योर बॉडी लूजेस ऑल द वाटर, right? It starts losing water, then also on the weighing scale you'll see कि आपका weight कम हो गया, which is what many trainers कई बार suggest करते हैं just to show their clients कि results आ रहे हैं। क्या आप पोर्शन कंट्रोल में जंक फूड भी खा सकते हो? To be honest, हाँ। एक और टाइप ऑफ वीडियो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस स्पॉट रिडक्शन, कैसे मेरा आर्म फैट लूज हो जाए, कैसे मेरी डबल चिन चली जाए, कैसे बेली फैट चला जाए। तो 10 साल पहले मुझे पता चल गया था अच्छा स्पॉट रिडक्शन नहीं है। दिस myth is still as common as it was। हेलो एंड वेलकम टू द TBH पॉडकास्ट। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और हम सब ने रेजोल्यूशन लिया है टू लुक बेटर, हैव अ हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन एंड सो मच मोर। इसी रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने डाइट, वर्कआउट और पता नहीं क्या क्या चालू कर दिया होगा। तो इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारे वेट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको होंगे दैट विल हेल्प यू अचीव योर डिजायर्ड बॉडी। Today we have with us Vaibhav, who is a member of the Nushabe team, a certified nutritionist and an in-house content creator for the company. He'll be helping us with all the doubts. Hi Vaibhav. Hi Anupriya, how are you doing? I'm doing well. How are you? I'm good as well. Thank you for the lovely introduction and I'm glad we are doing this finally। है ना, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि यार एक पॉडकास्ट होना चाहिए जहाँ पे लोगों के डाउट्स एड्रेस हो, पीपल गेट टू meet more influencers, more people who are related to the fitness industry। Yes. So yeah, finally we are here doing the first episode of the TBH podcast. So glad। So to begin with, I would want to know कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? Oh God, ये तो हमारा सोचा नहीं। Being disciplined and not just with my workouts or something, but overall I would say चाहे वो जॉब को लेके हो, मतलब विद योर वर्क, राइट, यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट्स यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड ओवरऑल आई वुड से टारगेटिंग हैप्पीनेस ओवर anything else is the goal for this year, because I think with using more social media and just in general, I think life has become more stressful for everyone। Whenever I talk to people or whenever I talk to clients, I think उनका जो stress level है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। उससे तो मैं ये जानने को मिलता है कि यार थोड़ी happiness and sanity of your mind is something you should target more, and rest will follow is what I believe। Got it. It is a very nice resolution to have. पर ये रेजोल्यूशन चल कैसा रहा है? मतलब how much are you keeping up with it? Guys, let's keep it for the next podcast। But नहीं, अच्छा चल रहा है यार। In fact, at Nutrabe, I mean, we have moved to a new space now, yes, right? And the space is beautiful। तो वो ऑफिस स्पेस का वो ऑफिस एनवायरनमेंट जो मिल रहा है, that is actually helping me a lot, right? On top of it, our work has become much more streamlined। We are growing on social media. Even I think health-wise, things are looking much better now। So yeah, I think the resolution is pretty on point। I think I'll hit the goal, I'll hit the mark। Yeah। We hope कि आपका resolution पूरे साल intact रहे and you're able to keep up with it। But let's just speak about जो resolution हम सब हर साल लेते हैं कि हमें better दिखना है, we need to have a better body composition। There is one thing that comes to my mind कि हमें हमेशा बोला जाता है everybody who's trying to lose weight, they have to be in a calorie deficit, right? But calorie deficit achieve करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। ठीक। How important is it to choose the right way to enter a calorie deficit? या बस calorie deficit enter कर लो, that's sufficient for weight loss? नहीं, it's not at all sufficient। In fact, तो इसमें ना आई थिंक पहली चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये कि कैलोरी डेफिसिट में सबसे बड़ी मिस्टेक अगर मैं बोलूँ लोग ये करते हैं कि दे वुड गो टू एक्सट्रीम, राइट। कैलोरी डेफिसिट का ये मतलब नहीं है कि खाना खाना बंद करना है, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू। मतलब वो बहुत ही कम खाना शुरू कर देते हैं एंड देन डेफिनेटली यू लूज वेट, राइट, बट यू विल ऑल्सो लूट अ लॉट ऑफ मसल अलॉन्ग विद इट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो सकती है, राइट, बहुत सारा डेफिशिएंसीज हो सकती है, पीपल एंड अप इन हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग।
So that is definitely not the right way to go about a caloric deficit. I think a deficit of let's say 100 to 200 calories every week, followed with weight training and the right nutrition, is the right way to ideally go about it, right? Also, अगर मान लो your target is just weight loss या fat loss, तो having a very high protein diet along with weight training plus cardio, this is ideally how you should go about it. आप carbs and fats को काफ़ी हद तक manipulate कर सकते हैं given कि आपकी caloric requirement क्या है, right? And I think the rest follows eventually. Muscle build करना उसमें इसलिए important है because your muscles are more like a furnace, right? उनको constantly calories चाहिए होती है to keep burning, right? So to speak. So जैसे जैसे आप अपना muscle mass increase करते हैं, overall आपकी obviously muscle cells increase हो गई, and hence आपकी जो caloric consumption है वो बढ़ जाती है, right? Got So even if you're consuming, let's say, the same amount of calories but your muscle mass is increasing, then also you'll start burning much more calories, and that is another way of creating a deficit, right? So the deficit doesn't always have to come from your diet. It can come from exercise and other things, right? आप फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ जो लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कई लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, सो दे कैन इंट्रोड्यूस लॉन्ग वॉक्स, राइट? एंड वॉक्स आर अ ग्रेट वे ऑफ बर्निंग सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. So yeah, I think that would be the better way of doing it rather than following a crash diet or any stupid diet. Got it. So guys, now you know, crash diet is a big no-no. Yeah. So follow a meaningful diet, have a nutrition coach who can guide you to reach a sustainable deficit जिससे आपकी body healthy भी रहे and you're able to lose the weight that you Yeah. want. Having a coach is very important actually because आपको खुद पहली बात तो यार, not everybody is a nutritionist or not everybody understands nutrition, and it is a very मतलब बहुत deep science है, correct? तो उसको समझने का, उसे पढ़ने का टाइम भी सबके पास नहीं है, right? I think most of us are working professionals True. or students or whatever be the case. तो एक कोच आप, I'm just giving you a vague example, but even if for online coaching I would say आप अपनी ज़िंदगी में एक बार वो 10-20 हज़ार रुपये खर्चेंगे, and that coach will help you understand कि how to go about nutrition. आप exercise के बारे में आपको थोड़ा बहुत basic knowledge दे दी जाएगी, and that is something that you will be able to follow for the rest of your life, right? तो आप एक बार कोच हायर करते हैं, but you get enough knowledge जिससे आप हमेशा एटलीस्ट खुद के लिए तो एक सस्टेनेबल बैलेंस्ड डाइट प्लान बना पाते हैं, राइट? सस्टेनेबल बैलेंस्ड एक्सरसाइज प्लान बना पाते हैं जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं फिट एंड हेल्दी रहने के लिए. इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन माई ओपिनियन. ठीक है, I get your point, but what if somebody is not even able to make that investment? उनके लिए क्या तरीका है weight loss करने का? पहली बात तो वेट लॉस इज नॉट समथिंग यू शुड एनीवे टारगेट, राइट? अनलेस आई मीन कई बार कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जहाँ पे इट इज़ एडवाइज दैट यू लूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट immediately, but that is not what we will be discussing here. I think fat loss is the only thing that you should target, right? Because if you only target weight loss, तो आपका weight तो बहुत सारी चीज़ों से कम हो सकता है, right? आप अगर carbohydrates छोड़ देते हैं, salt छोड़ देते हैं, then your body loses all the water, right? It starts losing water, then also on the weighing scale, you'll see कि आपका weight कम हो गया, which is what many trainers कई बार suggest करते हैं just to show their clients की results आ रहे हैं. Right. Hence, weight को target करना is not the ideal thing to do. The ideal thing to do is to really have an aim for fat loss. And even for fat loss, again, जैसे हमने discuss किया, caloric deficit is very important. Having a comparatively high protein diet that you usually do. So 1.2 grams to 1.4 grams per kg of body weight is somewhere जहाँ पे you get enough protein for your muscle building goals or muscle maintenance goals, and then followed with weight training plus cardio. So ideally this is what you need to follow. Okay, so जिनके पास, if you do not have a coach, this is what you can follow. Consume more protein, get into whatever exercises he suggested, and that will help you lose weight. There are some lifestyle conditions also, right?
जैसे PCOS हो गया, PCOD हो गया, जिसमें वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट विद Correct. PCOS और PCOD. This is only for general opinion. But generally, what is the kind of lifestyle people with PCOS or PCOD can follow to have a healthy body composition? I'm not saying कि बहुत ज़्यादा weight loss हो जाएगा ये, but a healthy body composition. आई थिंक या इन जनरल अगर आप देखो ना कि जब भी आपको एक हेल्थियर लाइफस्टाइल चाहिए, कुछ बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो कोई भी फॉलो करेगा, चाहे बीट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम PCOS या किसी को इन जनरल हेल्दी भी रहना है. यू लीव ऑल द जंक फूड असाइड, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट. देन आप जितने भी बैड ऑयल्स, ठीक है, बैड फूड्स इन टर्म्स ऑफ मैदा हो गया, ठीक है, आप इस तरीके के जो फूड्स होते हैं जिनको हम जनरली बैड कंसिडर करते हैं, आप इन फूड्स को जैसे ही छोड़ देते हैं, यू ऑटोमेटिकली फील मच मोर हेल्दियर, राइट? एंड following an exercise routine is extremely important, right? So for example, in the cases of PCOS या PCOD, आपका hormonal imbalance काफ़ी ज़्यादा होता है, which is one of the main issues why you're not able to even lose weight and everything. Hence उस केस में तो वेट ट्रेनिंग इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, राइट? बिल्डिंग मोर मसल विल एक्चुअली हेल्प यू इन रेगुलराइजिंग दोज हॉर्मोन्स एज वेल, राइट? आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज दिस इज नॉट some my area of expertise, but in general whatever I have read so far, following a good weight training regime along with a very clean diet should ideally help any person suffering from PCOS and PCOD to have a much healthier life. Yeah, Got it. So the next thing that I have to ask you is, न्यू ईयर स्टार्ट होते ही सारी जो भी डाइट्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है. अभी आई वॉज लुकिंग फॉर द सर्च वॉल्यूम ऑफ सम डाइट्स, कीटो डाइट, पेलियो, एटकिंस, सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, लो फैट, लो कार्ब, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. हाउ मच डू यू थिंक will it benefit a person if they follow these diets for weight loss? Okay, तो यार I've dealt with a lot of clients in my life. The only issue is कि most of the people जो diet पे जाते हैं ना, particularly जब उनके दिमाग में होता है कि मेरे को diet पे जाना है, they fail after a certain point. Yes. ठीक है, because नहीं होती sustainable. The ideal way, not the ideal way, the best way to go about it in my experience has been that जो आप खाना regularly खाते हैं, right? For example, I'm a North Indian, right? And I'm a non-vegetarian as well, right? So my diet generally consists of, let's say, eggs हो गया, chicken, पनीर, दाल, राजमा, रोटी, चावल, etc, right? All you need to do is कि आप portions को सही से manage करें, ठीक है? सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है अगर मैं स्पेशली फैट लॉस की बात करूँ, वहाँ पे ये कि आप पोर्शन कंट्रोल में हमेशा मिस आउट कर जाते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल पीपल डोंट इवन नो कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ राइस जब वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, सर्टेन नंबर ऑफ रोटीज़ वो ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, राइट? दे डोंट सी इट दैट वे. वो फूड को कैलोरीज के नज़र से नहीं देख पाते हैं, राइट? देखते ही नहीं है बिकॉज नॉलेज भी नहीं होती. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि मान लो आपने अपना BMR कैलकुलेट कर लिया, यू नो अच्छा दीज आर द मेंटेनेंस कैलोरीज है ये मेरी, ठीक है? नो डिपेंडिंग ऑन योर गोल, अगर आपको वेट गेन या मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, अकॉर्डिंगली आप कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं या कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं. देन फर्दर आप डिस्टिंक्शन करते हैं कि भाई ये मेरे 3 मेन मैक्रोज है, ये रहा मेरा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. तो आप प्रोटीन को थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट? एंड आप अकॉर्डिंगली उसका पोर्शन साइज मेंटेन करते हैं. Then you look at carbs and fats depending on what your goal is. Very simple. But हमेशा पोर्शन साइज को कंट्रोल करना इज द बेस्ट वे. रीजन बीइंग कि आप बचपन से वो खाना खा रहे हैं, you're used to that food, right? Suddenly if you introduce avocados, breads, olive oil in your diet, जो कभी नहीं खाया भाई, मतलब एक साउथ इंडियन को आप ऑलिव ऑयल थोड़ी दे दोगे ना. He is so much used to coconut oil. ठीक है, I am so much used to सरसों का तेल. आई लव सरसों का तेल, ठीक है, सो हेल्दी. यस, आई लव घी. यस, आई लव बटर. यस. तो तुम सडनली मेरे को ऑलिव ऑयल दे दोगे ना, मुझसे नहीं खाया जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, सस्टेनेबल नहीं है मेरे लिए. तो सस्टेनेबिलिटी
is I think the key to having the most balanced and appropriate diet for an individual. Simple. ठीक है, ठीक है. When you say कि पोर्शन कंट्रोल में अगर आप चीज़ें खाओगे तो इट विल हेल्प यू लूज वेट, Yeah. सो क्या आप पोर्शन कंट्रोल में जंक फूड भी खा सकते हो? Very interesting. You should not have asked that. But यार, to be honest, हाँ, ओके. ठीक है. An honest answer is कि आप खा सकते हो. Not something that I promote, of course. Yeah. Right? Because even if, so in my experience, अगर आप clients को ये भी बोल देते हो ना कि ठीक है आप जंक फूड लेट्स से एक आध बार खा लेना, उनके दिमाग में भाई एक आध बार नहीं चलता. उनके दिमाग में चलता है हाँ 3 बार ही तो खाया है हफ्ते. 3 बार ही तो खाया. But that 3 बार is a lot. If you see the preparations जो होती हैं, आपको प्लेट में नहीं समझ आता the amount of oil being used and everything, but ideally जो जंक फूड होता है that is very high in calories. ठीक है, हम उस तरीके से घर पे खाना प्रिपेयर ही नहीं करते, राइट. वहाँ पे प्रिपरेशन होती है इस तरीके से कि मतलब बेस्ट लेवल ऑफ टेस्ट ही आपको मिलना चाहिए. हाँ. तो फिर भाई वो तो सब यूज़ करेंगे, जितने सॉसेज उनको यूज़ करना है, जितना उनको तेल यूज़ करना है, एवरीथिंग. जंक फूड आइडियली हमेशा ही वेरी हाई ऑन कैलोरीज होता है, आप नहीं ट्रैक कर पाते हो उन कैलोरीज. हाँ मतलब डेफिनेटली यार, आपने हफ्ते में किसी एक मील में कुछ खा लिया, दैट इज स्टिल फाइन, यू विल बी, तुम उसको कर लोगे मैनेज, राइट. पीपल हैव चीट डेज. या चीट डे. आज मेरा चीट डे है, पूरा संडे चीट डे है भाई पूरे. एंड देन दे आर लाइक कि यार मैं 3 महीने से सेम ही दिख रहा हूँ, जबकि मैं हफ्ते के 6 दिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे होता हूँ. बट देन यू लूज इट ऑन अ संडे, यू आर लाइक सब मज़े कर रहे हैं, मुझे भी मज़े करना है. विच इज़ वाई सस्टेनेबिलिटी, अगेन सस्टेनेबल डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉइल्ड फूड खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, एंड यू आर लाइक मेरा आज चीट डे है, आज मैंने फट्टे चक देने हैं. एंड देन भाई दैट इज वेयर ऑल द डाइट्स फेल. गॉट इट. आई थिंक एक अच्छा तरीका हो सकता है कि इफ़ यू एट ऑल वांट टू हैव जंक फूड मोर देन वंस अ वीक, घर पे बना लो, ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि आप क्या डाल रहे हो क्या. और थोड़े से मतलब यू कैन मिस आउट ऑन सम सॉसेस, अच्छा बन जाता है. मतलब दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. आई थिंक फॉर एग्जांपल मान लो अगर पास्ता है, यू कैन हैव अ व्हीट पास्ता. यस. ठीक है, व्हीट वाला पास्ता बना लो. यू कैन ऐड योर प्रोटीन, मतलब तुम उसमें पनीर डाल सकते हो, चिकन डाल सकते हो, जो तुम्हें सही लगता है. यस. वो डाल के पास्ता बना सकते हो. बट देन अगेन वो सस्टेनेबल लेट्स से क्यों नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उनके पास टाइम भी नहीं है कुकिंग करने का, है ना. तो इफ़ यू हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, तुम बाहर ही खाओगे, तो वो भी अगेन आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग वीडियोज कि दिस इज माई डाइट ऑफ द डे, मैं ऐसे प्रिपेयर करता हूँ. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर कंटेंट क्रिएटर्स. उनकी तो भाई सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, वो पूरा दिन ही वही करते हैं. इट्स सस्टेनेबल फॉर देम. या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो पूरा दिन वही करते हैं. अगेन सस्टेनेबल फॉर देम. फॉर अ कॉमन पर्सन लाइक यू एंड मी नहीं हो पाएगा यार. सो अगर आपके लिए सस्टेनेबल है घर पे जंक फूड बनाना, सो यू कैन डू दैट. अगर नहीं है तो एक मील खा लो, प्लीज डोंट हैव अ चीट डे, हैव अ चीट मील इन अ वीक, मे बी वंस अ वीक, गुड इनफ. तुम्हारी सारी क्रेविंग्स मतलब तुम संतुष्ट हो जाओगे उसके बाद. ओके, गॉट इट. Besides these diets जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक और चीज़, एक और टाइप ऑफ वीडियो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इज स्पॉट रिडक्शन. स्पॉट रिडक्शन, कैसे मेरा आर्म फैट लूज हो जाए, कैसे मेरी डबल चिन चली जाए, कैसे बेली फैट चला जाए. जाता है इससे, मतलब इन एक्सरसाइजेस से यार. इनफैक्ट कमाल की बात ये कि मुझे ना, आई मीन आई हैव बीन फॉलोइंग फिटनेस फॉर व्हाट नाउ 10 years, राइट. मतलब एटलीस्ट पढ़ना उसके बारे में, जानना और इन्फॉर्मेशन गैदर करना. तो 10 साल पहले मुझे पता चल गया था अच्छा स्पॉट रिडक्शन नहीं होता. कूल, ठीक है. मुझे लगा धीरे धीरे सबको पता चल चुका होगा, क्योंकि भाई सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सब इनके तो इतने व्यूज़ आते हैं क्रिएटर्स के. बट नहीं भाई, दिस मिथ इज स्टिल एज कॉमन एज इट वाज. ठीक है. एंड विच इज़ स्ट्रेंज, बट स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट चूज़ कि मुझे ना, सो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स आते थे ना जब, तो दे यूज्ड टू बी लाइक कि मुझे ना बस पेट कम करवा दो. ठीक है, मेरे भतीजे की शादी है, मेरे चाचे के बेटे का ये है, मुंडन है, वॉट एवर बी द केस, कि भाई ये कम करा दो,
ठीक है. और फीमेल्स इनफैक्ट फीमेल्स बहुत बार आती है कि माई आर्म्स आर हैवी, ठीक है, बैक पे बहुत ज़्यादा शादी होने वाली है, फटाक से हम करा दो. मैं लहंगे में फिट कैसे आऊंगी? नहीं हो सकती स्पॉट रिडक्शन, है ना. आप नहीं कर सकते, आप चूज़ नहीं कर सकते कि मेरे को यहाँ से फैट लूज़ करना है, वहाँ से करना है. बॉडी ओवरऑल चूज़ करती है कि उसको मतलब बॉडी ओवरऑल फैट लूज़ करती है, ठीक है. एंड कई लोगों में कुछ डोमिनेंट एरियाज होते हैं, वो वहाँ से जल्दी फैट लूज़ कर लेते हैं. कई लोगों में वो डोमिनेंट एरिया सेम नहीं होते, ठीक है. तो सम पीपल, कुछ लड़के इनफैक्ट जल्दी टमी एरिया से फैट लूज़ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, ठीक है. कुछ का फेस जल्दी पतला हो जाएगा, टमी सेम रहेगा. कुछ का टमी पतला हो जाएगा, फेस अभी भी हल्का सा मोटा है. यू कांट हेल्प इट, इट इज़ हाउ योर बॉडी इज, ठीक है. बट यू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट. लगातार उस डिज़ायर्ड जो तुम्हारी शेप है, डिज़ायर्ड जो तुम्हारी लुक है, जो तुम आना चाहते हो, क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं हो, उसके लिए काम करते रहे, ठीक है. डे इन डे आउट फॉर years you keep doing it and then you are able to maintain a certain shape. But nahin, you can't have spot reduction. I'm sorry, guys and girls. Now that we're speaking about the search volume of keywords and things like that, और वीडियोस कौन से ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, डिटॉक्स फूड्स और ड्रिंक्स भी बहुत ट्रेंड करने लगता है इस टाइम पे. सब बनाने लगते हैं कुछ मिक्स करके कि ये डिटॉक्स फूड खा लो या ये ड्रिंक पी लो, और ऐसे फैट मेल्ट होते हुए दिखेगा तुम्हें. इतना बढ़िया फैट लॉस होगा. Correct. हो रहा है इससे फैट लॉस, फैट मेल्ट दिख रहा है. सारा फैट आपका डिटॉक्स डाइट एंड जूसेस से जाएगा गाइस. बिल्कुल भी नहीं भाई, कुछ नहीं होता. बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है, किडनीज एंड लिवर का फंक्शन है, बढ़िया डिटॉक्स कर देती है वो अपने आप. आप बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते, कितना ही कोई आपको मार्केटिंग करके बेचने की कोशिश करे. डिटॉक्स ड्रिंक, डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स फूड्स, सब बकवास है, ठीक है. इट डजंट हैपन. आप किसी चीज़ से डिटॉक्स नहीं कर सकते. ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक आप डिटॉक्स से फैट तो बिल्कुल लूज नहीं कर सकते, ठीक है. अब इसमें एक कमाल की बात यह है कि देयर इज अनदर वे पीपल सेल दीज डाइट्स, विच इज़ कि जब आप किसी को बोलते हैं आपको डिटॉक्स डाइट पे जाना है, आपको डिटॉक्स इस पे जाना है, तो आप बोल देते हैं आपको 3 दिन जाना है हफ्ते में, ठीक है, और लेट्स से नेक्स्ट 3 months, तो आप ऑटोमेटिकली आपको कैलोरी डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया. यस, ठीक है, बिकॉज आपने डिटॉक्स डाइट या उसमें खाया है क्या, कुछ सैलड्स टाइप के इस टाइप की चीज़ें होती हैं, राइट, या जूसेस होते हैं विच आर नॉट वेरी हाई कैलोरी, इट्स वेजिटेबल जूसेस इन ऑल, राइट. तो आपका कैलोरिक डेफिसिट ही इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है दैट यू ऑटोमेटिकली लूज वेट, राइट. इफ़ यू कंबाइन इट विद एक्सरसाइज यू माइट ऑल्सो लूज सम फैट, बट ओवरऑल आपका कैलोरीज बहुत ही कम हो जाती है. मोस्ट ऑफ दीज पीपल एंड अप विद अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज, क्योंकि उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं था. सो नहीं, डिटॉक्स डाइट्स वगैरह ये सब कुछ काम नहीं करती, ये फैट्स हैं और इनमें तो बिल्कुल मत पड़ना. मेरे को ना एक बहुत फनी चीज़ याद आ रही है. सो व्हेन आई फर्स्ट गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर स्कूल एंड आई वाज लाइक, मैंने देख लिए बहुत सारे वीडियोस डिटॉक्स ड्रिंक्स के, और मोस्टली दीज आर लाइक हॉट ड्रिंक्स, राइट, कि क्यूमिन सीड्स डाल दो और ये डाल दो और वो और बॉइल कर दो. बड़े मुझे लगा था कि मुझे फैट मेल्ट होता फील होगा. ओह माय गॉड, मुझे सही में लगा था कि वैसे खड़ी रहूंगी आईने के सामने और ऐसे, ओह माय गुडनेस मम्मी, आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ फैट, ऑल द बेली फैट इज गॉन. मेरे को सही में लगा था कुछ नहीं हुआ यार. many years later कुछ नहीं हुआ guys. I'm still safe. For how long did you consume it? यार मुझे तो लगता है मतलब काफी महीनों तक. महीनों तक? Yeah, right. Now also like I have fennel seeds water but not with the intention कि मुझे fat melt होता है. It's just a feel, मतलब मेरे लिए तो feel good thing है. I know it's good for digestion also, but मजा आता है उसको पी के सोने में, बस इसलिए है. Right. तो मेथी के दानों का पानी, जीरे वाला पानी, हनी लेमन वाटर, ये सब जितनी भी चीज़ें ना गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट फिर इनको बस हेल्थ के पर्पज से लो. फॉर एग्जाम्पल हनी लेमन वाटर मुझे लगता है मोस्ट कॉमन वो है ना. तो हनी लेमन वाटर का सिंपल ये है कि एंटीऑक्सीडेंट लेवल बहुत हाई होता है. मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपके एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, हेंस यू कंज्यूम हनी लेमन वाटर, ठीक है, उस एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके बेनिफिट्स को सबसे ज़्यादा पाने के लिए. बट यू डू नॉट कंज्यूम इट फॉर फैट लॉस, इट डज नॉट हेल्प यू विद फैट लॉस. As simple as that. Got it. I can validate guys. नहीं होता fat loss. लोग ना weight loss करने के लिए या fat loss करने के लिए low fat diet पे भी चले जाते हैं कि fat खाएंगे ही नहीं, fat बढ़ेगा ही नहीं. Correct. तो क्या मतलब it is the right way कि fat कम कर दो और बढ़िया, क्योंकि घी तो मैंने भी छोड़ा था once upon a time. नहीं यार,
तो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बहुत सारा फंक्शन है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन मतलब मेनली हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो फैट्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड होता है. अगर मेल्स इफ दे स्टॉप हैविंग इनफ सैचुरेटेड फैट्स, जिसको बिल्कुल ही बुरा माना जाता है, बट सैचुरेटेड फैट्स आपको टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हाँ. मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं. तो इफ़ यू लूज आउट ऑन ऑल द फैट, तो भाई तुम्हारी बॉडी तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगी, ठीक है. True. देन अ लॉट, आई मीन ग्रीजिंग इफेक्ट विद इन जॉइंट्स एंड एवरीथिंग, वो घी बटर ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है उसके लिए, राइट, फॉर योर बोन हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ इन जनरल आई वुड से. अगर कोई बहुत ज़्यादा लो फैट डाइट खाता है, योर स्किन स्टार्ट्स गिविंग अप, या आपकी स्किन बहुत ड्राई अप होना शुरू हो जाएगी, फ्लेक, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्स, डैंड्रफ एटसेट्रा. तो काफ़ी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं ऑन अ लो फैट डाइट एज वेल, यस राइट. तो नहीं, बैलेंस इज द की. एंड इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा, आप इंडियन डाइट को लोग बहुत टाइम तक डिमोनाइज करते थे, इंडियंस ही डिमोनाइज करते थे इंडियन डाइट को, कि इंडियन डाइट में ये नहीं है वो नहीं है. हमारी डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड डाइट. ट्रू. द ओनली इशू इज कि प्रोटीन फूड्स हमेशा से महंगे रहे हैं, एंड नॉट एवरीबडी हैज़ बीन एबल टू अफोर्ड प्रोटीन फूड्स. बट आज मतलब यू स्टिल सी कि अब थोड़ा people are able to spend more in everything, hence people are now including a lot of protein in their diet. तो जितने भी प्रोटीन डोमिनेंट फूड्स हैं, आप बस उनकी क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ा रहे हो. सेम इंडियन डाइट जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा दो, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल डाइट. वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल डाइट्स इज व्हाट वी हैव, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज ग्रेट अबाउट दिस डाइट. उसको फॉलो कर लो, सब सही है. ये हाई फैट लो फैट इन टट्टों में भी तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोटीन समझ लो. जिस दिन तुमने प्रोटीन को समझ लिया कि भाई कैसे कंज्यूम, कितना कंज्यूम करना है, यू आर डन. रेस्ट हमारी डाइट में सब कुछ है. हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स तो भरे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. तेल में तुम खाना बनाते हो, फैट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. एंड फैटी फूड्स तो चलो होते ही हैं, फूड्स में फैट्स होता ही है. जस्ट फिगर आउट योर प्रोटीन, you're done. And have an exercise routine, please guys. जिम जाओ, तुम लटको कहीं पे, ठीक है, तुम डंड पे लो, अंकित या आजकल पॉपुलर. या यस, एंड मतलब कुछ भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, भागो, वॉक्स करो, डू एनीथिंग. हाँ, मतलब जिम जाना जरूरी नहीं है फॉर वेट लॉस, मूव करना बहुत ज़रूरी है. मूव करना जरूरी, मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल जिम, आप मान लो फैट लॉस के लिए जिम जाना चाहते हो, बट आपको टाइम ही नहीं मिल रहा जाने का, तो आप वॉक करो. वॉक इनफ. इनफैक्ट वॉकिंग लूजेज मोर फैट, ठीक है. आप अगर बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, यू लूज मोर ऑन दैट कार्बोहाइड्रेट्स वाले सेक्शन से. बट जब आप वॉक ज़्यादा करते हो, तो वॉकिंग हेल्प्स यू इन बर्निंग मोर फैट रादर देन मोर कार्बोहाइड्रेट्स. दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट. कितना वॉक करना चाहिए? 10,000 स्टेप्स अ डे. 10,000 steps is like a very good mark to have. Even if तुम 5,000 भी करते हो, great, ठीक है. बट सो मैं इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगा, स्पेशली आफ्टर मील्स वॉक करना बहुत ज़रूरी है. तो इट हेल्प्स यू विद डाइजेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स यू विद ऑल द ब्लड शुगर स्पाइक्स दैट यू हैव, ठीक है. सो आई थिंक देयर इज ऑलमोस्ट, आई डोंट रिमेंबर इट वेरी एक्यूरेटली, बट आई थिंक कुछ 50% तक जो तुम्हारा स्पाइक होता है, मतलब 30 to 50% तुम्हारा जो ब्लड स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, वो कर्व होता है जब तुम इमीडिएटली मील को वॉक से फॉलो करते हो. सो वॉकिंग आफ्टर मील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनफैक्ट बहुत ईजी भी है, बिकॉज आपने मील ली, आप 10 मिनट चले, तो वो जो भारीपन है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज यू फील वेरी हैवी आफ्टर मील्स, और डाइजेशन में हेल्प हो गई, और जो स्पाइक होना था उसमें भी हेल्प हो गई. तो डायबिटिक्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट हेल्प्स यू बर्निंग सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. बट यार 10,000 स्टेप्स मुझे लगता है काफ़ी सही फिगर है टू अचीव. इट्स डिफिकल्ट, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. देन नॉट एवरीबडी हैज़ दैट टाइम. तो आप 5,000 भी एम कर रहे हो, गुड इनफ. आधा घंटा वॉक कर लो यार. इनफैक्ट बैक इश्यूज में बहुत हेल्प होती है, लोअर बैक इश्यूज में. ओके, स्टेबलाइजेशन में बहुत हेल्प होती है. जो आपकी स्टेबलाइजिंग मसल्स होती है वो वॉक में काफ़ी काम करती है, वॉकिंग वगैरह में, तो वहाँ पे भी हेल्प होती है लोअर बैक इश्यूज में. अनदर ग्रेट इनसाइट गाइस, आई नो. ओके,
So, before we end this, one of my last questions and a pretty controversial one at that is, बहुत सारे लोगों का I was seeing न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वीगन टर्न होना, वीगन डाइट फॉलो करना. ओके कितनी हेल्प मिलती है वीगन डाइट फॉलो करने से, वेट लॉस भी या इन जनरल, मतलब कितना ज़रूरी है वीगन डाइट फॉलो करना? यार किसी भी टाइप की डाइट को फॉलो करना पहली बात तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. आप जो खा रहे हो आप यू कैन कीप ईटिंग दैट, नॉट जंक. व्हाट आई मीन इज यू कैन कीप ईटिंग ऑल दी हेल्दी फूड जो तुम्हारे घर पे बनता है, उसी में पोर्शन कंट्रोल. अगेन मैं इसको स्ट्रेस इतना करूँ बिकॉज दिस इज़ द की. तुमने एक बार पोर्शन कंट्रोल करना सीख लिया, तुमने उसको समझ लिया ना, तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी. तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बंद कर दो इस पॉडकास्ट. लेकिन पोर्शन कंट्रोल सीख जाओ एंड या दैट्स अबाउट इट. प्रोटीन समझ लो, पोर्शन कंट्रोल समझ लो, एक्सरसाइज क्या करनी है समझ लो, ये डन. रही बात वीगन होने की, इट इज़ अ चॉइस दैट पीपल हैव. ठीक है, ईच टू हिज ओन. जिसको फॉलो करना है वो कर सकता है. द ओनली इशू इज़ व्हेन यू टर्न वीगन, तो यार हर चीज़ को बैलेंस आउट कर पाना, सारे जो मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. Got it. I think that is it. Perfect. Thank you so much for all the information you gave. काफ़ी बुलवाती है ये लड़की. Guys, I hope आपके सारे questions और issues resolve हो गए हो and you will be able to keep up with your 2024 resolution, which is achieving a healthy body composition and not just losing weight, because we are for fat loss and not for weight loss. Thank you so much for watching this podcast. Like, share, comment and subscribe. आपके कोई भी doubts हो तो please leave them in the comment section and we would like to address them as soon as possible. See you in the next podcast. Bye guys.